Welcome to our podcast. I am Yashraj, and with me, this is Professor Kaushambi Kaushal, who is head of the CSR initiative in IIBM. And today we will discuss in this podcast about CSR activities, which refers as corporate social responsibility. Thank you, Yash. We are going to talk about the CSR initiatives, what the IBM, Indian Institute of Business Management, is taking forward. And we already started some of the activities since July. We have done the education program with the government school. We have went to the Kilkari where we done the fun activities as well as the educational activities, and we even invited our government school students on 15th August to see the film Moori. But what are the factors which inspire you to do and serve towards the society? The major reason was doing the CSR activity is that we owe to the society itself, because society is giving a lot of things to us. Even environment is giving a lot of things us. So that made me think that what we give to the society, we will get the same thing. For example, in Mumbai, what we give to the sea gives you back. जब rainy season आता है या sometimes something happens to them, when we throw plastic or any dust material to the sea gives back to the public. So that made me think why we are putting things to the environment. So ये शुरुआत we can take an initiative and little bits चीजों से करके हम शुरू कर सकते हैं. So I've started with my home itself that I don't use plastic at my place. I prefer using utensils of either steel or old like mud, मतलब मिट्टी की बर्तन या फिर glass के materials. So I just prefer that rather than a plastic. So that made me कि ये छोटे छोटे initiative can help the society, can help the environment, and we can protect for our youth these things. एक बहुत अच्छा सा फीलिंग आता है जब आप किसी के लिए कुछ करें एंड उनके फेस पे स्माइल आ जाए. तो वो तो वर्ड्स में बताना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आपको देख के कि आप किसी के लिए कर रहे हैं, किसी नीडी वंस के लिए, एंड वो खुश हो रहे हैं, तो फिर आपको कैसा फील होता है? I feel good actually because क्योंकि sometime when you see, कभी कभी आप अपनी चीजों को भूल जाते. When you are going through a summer rough phase, you can also forget that. उनके चेहरे पे स्माइल आके लगेगा कि अरे हम कुछ अच्छा कर. वो जैसे as you said it, it's very difficult to express. मतलब जताना बहुत मुश्किल है कि हम क्या अंदर से फील कर रहे हैं, बट अपने आप में एक अलग सी फीलिंग होती है कि मतलब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं. So what you feel, because you are the part of the CSR initiative, so how you felt? तुम्हें कैसा लगा ये करके? वो मैम एक तरह से सेम वाला फीलिंग था जब आप अपनों के लिए कुछ करो. जैसे होता है कि अगर हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, एंड फिर वो जब प्राउडली बोलते हैं हाँ ये मेरा बेटा है. तो उसी तरह जब हम लोग भी स्कूल में जब गए थे एंड हम लोग उनको पढ़ाए तो वो लोग भी बोल रहे भैया आप लोग फिर से आइएगा, पढ़ के बहुत अच्छा लगा. एंड द स्माइल वॉज नॉट फेक, it was a real smile which any person can see and they can feel yes, they are really happy about them. So we have done like 2 or 3 activities past 2 months. First was the school. Okay, so school में था तो you share the experience. What you felt when on 5th, because that was your initiative. You wanted students of government school to come on 15th August and be the part of our organization. तो हाउ यू फेल्ट वो पूरा ऑर्गेनाइज करके? वो काफी अच्छा था. जैसे 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है तो हर कोई तो अपने स्कूल में मनाता ही है. जैसे उन लोग का भी उस दिन प्रोग्राम था तो वो लोग सिंगिंग में पार्टिसिपेट किए हुए थे, डांस में पार्टिसिपेट किए हुए थे. तो होता क्या है कि अगर आप कोई एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप वो करने के बाद आप थोड़ा थक जाते हैं. बट उनका क्या था, वो कंटिन्यूअस किए 8 से उनका जो भी शेड्यूल था 10 साढ़े 10 तक, एंड फिर उसके बाद वो सेम एनर्जी के साथ वहां से आए
उस दिन धूप भी काफी था तो धूप में भी आया, बट उनके फेस पे जो स्माइल था वो उस टाइम से मेंटेन होके जब तक वो जाने वाले थे तब तक उनके स्माइल पे था, उनके फेस पे वो स्माइल था। तो मैम वो एक तो आप उनके लिए कर रहे हैं एंड वो हैप्पी हो रहे हैं तो फिर आपको भी बहुत अच्छा लगता है ना कि आपके कारण कोई हैप्पी हो रहा है। एंड वो लाइक उसके बाद जैसे हर चीज वीडियो पे नहीं होता है तो उसके अलावा भी हम लोग जैसे उनसे वीडियो पे तो बात नहीं किए, बट ऐसे जो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन था उसमें वो लोग अपना एक्सप्रेस किए, उनका फीलिंग लाइक उनको क्या अच्छा लगा एंड वो कैसा फील किया, तो वो सुन के एंड फिर ये इंस्पायरेशन आता है कि अगर हाँ अगर हम लोग का एक इंस्टीट्यूट कर रहा है जिसमें हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर हर कोई करे कुछ तो फिर जितना भी पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में है तो उन लोगों को इतना अच्छा होगा। एंड जो फीलिंग एंड फिर जो हम लोग रोल मॉडल का काम कर रहे हैं तो वो बहुत सारे लोग बन सकते हैं वो, तो फिर काफी अच्छा फील होता है आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो भी, एंड फिर वो जब आपको बताते हैं या नहीं भी बताएं तो आपको देख के वो चीज फील होता है कि हाँ हम लोग किसी को किए, तो डीप इनसाइड आपको अंदर से जो एनर्जी एंड जो फीलिंग आता है वो मैम आई थिंक दैट कांट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। And what you felt during the जैसे किलकारी की एक्टिविटी थी जो आपके फ्रेंड्स ने मिलके किया और आपने भी यू आर द पार्ट ऑफ इट, तो हाउ यू फेल्ट इट, क्योंकि वहां पे एक डिफरेंट क्राउड था हाँ। और वी आर डूइंग अ डिफरेंट एक्टिविटी। वहाँ लाइक दोनों लाइक जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स थे एंड वहाँ के स्टूडेंट दोनों काफी अलग थे, बट था क्या कि ना दोनों एक तरह से लाइक पूरे हम लोग सब तो एक ह्यूमन है, तो उस एंगल से आप उनके लिए कुछ किए एंड वो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे हर चीज में, लाइक किसी कोई कोई खो खो खेल रहा है, कोई बैडमिंटन में प्रो है, कोई क्रिकेट खेल रहा है एंड वहाँ का जो ड्राइंग था क्राफ्ट था, मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि वो छोटा छोटा उतना छोटा छोटा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। एंड फिर सबको लगता है अभी तो बच्चे हैं एंड अभी के एज के 20 साल 22 साल हो जाता है, अभी तो हम बच्चे हैं। एंड फिर वो बताते हैं कि क्या होता है, लाइक वो लोग इतने छोटे 10 साल 12 साल के बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट पे इतना अच्छा अच्छा बता रहे हैं। एंड फिर जब उस दिन भी एक स्टोरी था एपीजे अब्दुल कलाम का, तो उन लोग में काफी बच्चे को पहले से पता है एंड वो लोग एड ऑन कर रहे हैं उस स्टोरी में कि हाँ मैम ये हुआ था, हाँ सर ये हुआ था, तो इससे वो पता चलता है कि हम लोग का जो फ्यूचर है वो ऐसे जैसे एक बोलते हैं बाहर की बिहारी है, तो वो उन लोग में बिल्कुल वो कैपेसिटी है कि वो जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज कर सके। सो कैन वी डू इट इन अ फ्यूचर, मतलब हमको ये करना चाहिए फ्यूचर में कि नहीं करना हाँ चाहिए बिल्कुल, आगे? जैसे ही आपका गाइडेंस हो गया, प्रोफेसर रोहित सर का हो गया, अमित चौधरी सर का, भावना मैम का, एंड उनके साथ जो सपोर्ट एंड गाइडेंस मिलता है डायरेक्टर सर पांडे सर का, तो वो लोग हमेशा हम लोग को इनिशिएट करते हैं कि हाँ आप लोग कीजिए किसी और को, लाइक ऐसा कभी भी मूवमेंट नहीं हुआ है कि हम लोग गए एंड बोले कि सर हम लोग को ये करना है एंड दे विल से नो यू डोंट हैव टू डू दिस। वो हमेशा लाइक इंस्पायरिंग किया, हम लोग 2-3 पेज का वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाले थे, बट रोहित सर उसको डायरेक्टर सर चेंज करके उसको फिर पूरा एक हार्ड कॉपी एकदम अच्छा सा बुक, तो फिर वो उनका भी माइंडसेट शो करता है कि हम लोग को करना है ये तो फिर फ्यूचर में भी करना है। एंड ये बस एक टाइम 2 टाइम का था नहीं कि हम लोग 1 महीने में 1 इवेंट 2 इवेंट कर दिए, दैट्स इट। जब तक हम लोग हैं एंड फिर हम लोग जब पास आउट हो जाएंगे तो फिर उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी ब्राइट है, तो मेरे को तो यही लगता है। एंड फिर इंस्टीट्यूट भी इतना सपोर्टिव है तो वो सेम चीज हम लोग आगे भी हमेशा रिपीट करते रहेंगे। Yes, because institute अगर because I was working Yes. prior also, I always wanted to have a platform. Though I was doing myself, थोड़ा बहुत करती थी, but I wanted a platform जहाँ पे मुझे एक help मिले कि that I can go like explore things on doing the social issues. ठीक है, and fortunately I got to this with the college itself, IIBM itself, because Rohit sir as a director is helping lot of things, as you said it, that story part, that book part. We thought of कि हम सिर्फ 2 या 3 पेज का मटेरियल देंगे, बट लकली when we said this कि सर हम सिर्फ 2 पेज का मटेरियल दे रहे हैं, and he said it कि no, we will publish a proper book and we will give the students, और बच्चे ही बनाएंगे बच्चों के लिए, मतलब हमारे स्टूडेंट्स ही बनाएंगे हमारे
गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, एंड दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि आई नो ही इज अ बिजनेसमैन ऑल्सो बिकॉज ही रनिंग अ कॉलेज, बट अ पार्ट ऑफ बीइंग अ बिजनेसमैन ही इज वेरी सिंपलिस्टिक एंड टेलिंग दैट कि आपको ये मौका दे रहे हैं, आप करो. सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस टू डूइंग दैट. एंड लाइक जैसे था, इस पर एक और चीज ऐड ऑन करना चाहते हैं. 15 अगस्त को जो इवेंट हम लोग कराने वाले थे वो सिंपल था कि वहाँ के बच्चे आएंगे, हम लोग उनको मूवी दिखाएंगे एंड जो भी रिफ्रेशमेंट आइटम होगा वो. बट वो खुद से हम लोग को भी सरप्राइज एंड वहाँ के बच्चों को भी सरप्राइज दिए, वो बैग उनको या डिस्ट्रीब्यूट किए. क्योंकि हमारे लिए वो सरप्राइज हाँ, था ये. कि लाइक हम लोग को भी यहाँ आके पता चला कि अच्छा ऐसा होने वाला है. तो वो बस ऐसा नहीं है कि बस वो कर रहे हैं, वो अपने से भी लाइक एक तो हम लोग जो बताते हैं एंड उसके अलावा हम लोग अगर बोलते हैं कि सर इतना करना है, तो वो हमेशा उससे ज्यादा एड ऑन करके ही करते हैं. तो इससे उनका भी पता चलता है, लाइक उनका भी पर्सपेक्टिव, उनका भी माइंडसेट कि वो भी करना चाहते हैं, तभी वो कर रहे हैं इतना. And when your boss is, because we are working here, so as a boss, he's supporting in this kind of a initiative. So it makes us feel good. And it's a good opportunity for as a faculty also that we are getting a new experience. Even जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं या अलग अलग पर्सनालिटी से मिलते हैं, क्योंकि अगर हम बच्चों से मिल रहे हैं तो वहां पे अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों की अलग पर्सनालिटी है, तो वहां पे एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि नई चीज सीखने को मिलती है. इवन उन बच्चों से जब किलकारी में गए तो वहां पे वी नेवर थॉट ऑफ कि उतने बच्चे टैलेंटेड होंगे, क्योंकि जिस तरह से दे वर आंसरिंग इट, जिस तरह से वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, दे वर टू गुड. सो एक अलग एक्सपीरियंस था, एक अलग फीलिंग थी कि हाँ मतलब वी डिड समथिंग गुड फॉर देम. So ma'am, what's your message to the society about CSR activity? Actually, my message is that start doing it from your home itself. घर में कुछ भी ऐसी चीज है जिससे आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इवन लोगों को हेल्प कर सकते हो. स्टार्ट फ्रॉम योर होम, बिकॉज ये आप घर से शुरू करोगे तो भी होगा, या आप अपने घर से शुरू करो या अपने वर्क प्लेस से शुरू करो, ऐसी जगह जहां पे यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ योर टाइम. ठीक है, तो वहां से शुरू करो. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सोशल वर्कर इन मुंबई, अफरोज करके. इज अ सिंपल मैन, बट उनको बिकॉज उस वर्सोवा में रहते थे, सो ही सॉ कि उनके सी के आसपास में लोग बहुत कचरा फैला रहे. ही इज जस्ट वेंट, ही स्टार्टेड पिकिंग अप द प्लास्टिक्स, और उनको क्लीन बीच क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट, एंड ही वॉन द लॉट ऑफ अवार्ड्स फॉर दैट. सो अवार्ड्स तो अपनी चीज जगह है, बट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट डूइंग इट सेल्फ द प्लेस यू आर लिविंग इन. अपने घर को साफ रखो. डस्टबिन में हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली कचरा रोड पे फेंक देते हैं. डोंट थ्रो इट, उसको उठा के आप डस्टबिन में डालो. इवन समटाइम टेक इट इन योर बैग एंड गिव इट, थ्रो इट इन योर होम्स डस्टबिन. अगर आपको कहीं कोई कचरा का जगह नहीं मिल रहा है फेंकने के लिए, तो थ्रो इट इन अ डस्टबिन. आप घर पे फेंक दो. मैं तो यही करती हूँ, मैं अपने बैग में कैरी करके ले जाके फेंक देती हूँ. So you start doing it at your home or your workplace or at your locality. That is my message for the society कि आप अपने घर से शुरू करें. एंड एक चीज और कि वो बस रियल लाइफ में कीजिए, वो कैमरा फ्रेम में आने के लिए हाँ मत नहीं, कीजिए. वो आप अपने दिल से करिए. ये नहीं कि हमको सिर्फ कैमरा में करना है तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. थैंक यू मैम, एंड आप सभी का वीडियो देखने के लिए.